Okay. Now, first formulas of gravitation: force. Force between any two object is of mass m1 and m2 is m1 m2 upon r square. This force is directly proportional to the product of masses, inversely proportional to the square of the distance. If I remove the proportionality and put a constant, this is called as universal gravitational constant. G का वैल्यू है 6.67 into 10⁻11. लर्न करना है. यूनिट्स क्या है G का? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. न्यूटन meter square per kg square. Okay, so this is a capital G value. Now, force is also equal to mass into acceleration due to gravity. Force is also mass into acceleration. अगर मैं gravity की बात कर रहा हूँ, that itself is called as the weight of an object. Now, ये MCQ question सबसे favorite question है. If the object of mass 5 kg is on Earth, what is the mass of an object on Moon? क्या मास रहेगा मून के ऊपर? So, अगर ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 5 kg है तो मून के ऊपर भी उसका मास 5 kg ही रहेगा. मास नेवर चेंजेस. जो उसका वेट है ना, दैट इज m into g, वो चेंज होगा. क्यों? क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा है. अगर अर्थ पे मास 5 kg है तो मून पे भी मास 5 kg ही रहेगा. बट ड्यू टू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वेट विल चेंज और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल चेंज. फोर्स ऑफ ग्रेविटी इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो इफ G का वैल्यू ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 10, तो इस वैल्यू को 10 लेंगे तो ये अगर 5 kg तो 50 न्यूटन हो गया. बट अगर मून के ऊपर वो सिर्फ 2 है तो 5 into 2 10 न्यूटन हो जाएगा. So weight of an object on earth and on moon will be different, but the mass of an object will remain same, चाहे वो कोई भी planet हो. Now let's equate this. Force of gravity is given by these two formulas. So if I equate both the formulas, mg is equal to g m1 m2 upon r square, where m1 m2 यानी mass of an object, mass of earth, small m, mass of an object on the surface of earth. So force is equal to mg, and the same force of gravity is also given by g m1 m2 upon r square. बट m1 के बदले आएगा मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m क्या नहीं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दोनों मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट गेट्स कैंसिल, तो g का वैल्यू क्या आ गया? gm अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू फॉर g. नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, ओके, सो उस केस में क्या क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी इज 0 and acceleration का value is plus g. Can you tell me why it is plus g? Initial velocity तो 0 है, but why acceleration is plus g? Because the object is falling in the direction of gravity. वो gravity के direction में जा रहा है, इसलिए plus g. v is equal to u plus at का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? u तो 0 है, a के बदले g आएगा, यानी क्या बनेगा? gt. S is ut plus half at square. में u का वैल्यू तो 0 है, ये पूरा टर्म 0 है, तो s का वैल्यू क्या आएगा? हाफ a gt स्क्वायर. ये s के बदले भी मैं h लिख सकता हूँ. ठीक है, h यानी s यानी हाइट. नेक्स्ट, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as के बदले क्या आएगा? v स्क्वायर इज u स्क्वायर 0 है, 2gh. Now, if a body is thrown vertically up, तो changes क्या रहेगा? If a body is thrown vertically up, तो final velocity 0 है. अगर बॉडी को मैं ऊपर फेंकूं तो final velocity 0 है, and acceleration का value is minus g. Why? Because the ball is going against gravity. Gravity नीचे pull कर रहा है, but ball is going upwards, so against gravity जा रहा है, इसलिए acceleration is minus g. Now let's see what happens to all the kinematical equation. v के बदले 0, initial velocity रहेगा. Why? Because when I am throwing a body up, मेरे को initially उसका velocity चाहिए, initially उसको फेंकने के लिए velocity चाहिए. a का वैल्यू minus gt. So मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? u is equal to gt. दूसरा,
S is ut plus half at square. Okay, S is ut plus half at square. U का वैल्यू रहेगा तो S क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. लास्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v का वैल्यू 0 है तो ये 0 स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया. a का वैल्यू यानी माइनस g, s के बदले में h डाल सकता हूं. ठीक है, तो ये 2gh इधर आएगा, यानी क्या बनेगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. So these are the changes with the formulas if the body is going up or if the body is going down. Okay, let's start with the numericals now. Come to page number 80. Come to page number 80. Okay, fifth sum. The weight of a body is 2 Newton. We know the weight of the body as 2 Newton. What is the mass of the body? तुमको mass पूछा है, g का वैल्यू दिया है 9.8 meters per second square. Now tell me, what is the formula for weight? Weight is nothing but force of gravity, यानी mg. So m becomes w upon g, 2 upon 9.8. ठीक है, डेसिमल निकाल दो तो 20 upon 98. Okay, now you have to calculate this in this. Sorry, एक मिनट, g का वैल्यू 10 दिया है. Sorry for this. Most of the time calculations के लिए easy करने के लिए g का वैल्यू 9.8 के बदले 10 दिया रहेगा. So this calculation is quite easy. नीचे 10 है, वैसे 0 निकाल दिया तो आंसर is 0.2 न्यूटन. समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, come to the sixth sum. The weight of a body on earth is 98 Newton. Weight of the body on earth is 98 newtons, where the acceleration due to gravity is 9.8 meters per second square. ये cancel होगा इसलिए ऐसे numbers दिए हैं. What will be its mass? Okay, my first question is what is its mass? So what is weight is equal to mg? So what is m is equal to w upon g? Weight 98, g 9.8. Decimal निकाल दो, 980 upon 98. कैंसिल करो 10. मास कितना आएगा, 10 kgs. Now mass आ गया 10 kgs. Now second question is weight on the moon where the acceleration due to gravity is 1.6 meters per second square. This is the weight on earth that we have used. This was the weight on earth. अब उन्होंने weight on moon पूछा है, तो weight on moon में weight का फॉर्मूला तो सेम है. Tell me, मास का वैल्यू क्या रहेगा? मास का वैल्यू अर्थ पे जो था, जो हमने ढूंढा, विल द वैल्यू रिमेन सेम? Yes, sir. यस, बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन सा आएगा, जो मून का है. सी, मून इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, इसलिए उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है. अर्थ इज बिग, तो उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है. सन इज मैसिव, तो उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर देन द अर्थ एंड द मून टुगेदर. Yes, So sir. acceleration due to gravity on moon is given. How much is that given? 1.6 meters per second square. 10 into 1.6 will become 16. It's a weight. The answer is in newtons. समझ में आ गया क्या करना है? Yes, sir. Okay. उसी का 7th sum देखो. A man weighs 600 Newton on Earth. Man weighs 600 Newton on Earth. What will be the approximate weight on moon? Okay, give reasons for your answer. Okay, now we already know that acceleration due to gravity on moon is 1/6 the acceleration due to gravity on earth. यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Okay, weight जो है वो m into g है, तो मेरे को weight पूछा है. वेट का जी के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है. वेट का जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. पूरा, वेदर इट इज मून और वेदर इट इज अर्थ, मास तो कांस्टेंट है. ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, सेम वे
weight of the object on moon is 1/6 the weight of the object on earth. Yes, sir. क्यों ऐसा आया? Once again, acceleration due to gravity on moon is 1/6 the acceleration due to gravity on earth. weight जो है वो mg है, mass constant रहने वाला है whether it is moon or whether it is earth. इसलिए weight on moon is 1/6 the weight on earth. That is 1/6 weight on earth is 600. कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया? 100 न्यूटन. इजी है ये? Yes, sir. A ball is released from the height and it reaches the ground in 3 seconds. So time to reach ground is 3 seconds. If g का value is 9.8 meters per second square, find, first question is to find the height. Second question is the velocity with which the ball will strike the ground, yani final velocity. So now these are your questions. So this is a falling object. Okay? I will better write over here. This is a falling object. अगर falling object है तो हमको पहले से कुछ चीजें मालूम है. U का वैल्यू क्या रहेगा? 0. Acceleration due to gravity क्या रहेगा? Positive. ठीक है? So you can use kinematical equation and solve, or you can use these formulas and solve. वो choice तुम्हारा है. ठीक है? So if I will better like to use kinematical equation. V is U plus AT. ठीक है? V ढूंढने का है. V ढूंढना है. U का वैल्यू 0 है. A का वैल्यू 9.8. Time 3 seconds. A 3s are 24. A 2s are 9 3s are 27 plus 2 यानी 29. एक नंबर पहले डेसिमल पॉइंट. मीटर्स पर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन, मुझे हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो मैं ये वाला या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. सो S इज ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. मैंने सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया. S यानी h, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ A यानी g t स्क्वायर, दैट इज हाफ. g का वैल्यू इज 9.8, t स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर. 2 कैंसिल करोगे तो 4.9. 4.9 इंटू 9, 9 9s are 81. आंसर इज 441. एक नंबर पहले डेसिमल पॉइंट. सो आंसर बिकम्स 44.1 मीटर्स. 9 सम 10 सम. हमेशा याद रखना एग्जाम में आफ्टर यू राइट दिस यू हैव टू राइट फाइनल आंसर. फाइनल आंसर लिखना कंपलसरी कल के टेस्ट में. क्लियर? Yes, sir. Okay, 11th sum. A ball is thrown vertically upward. Now this was falling object. यहाँ पे क्या है? It's vertically going up. ठीक है? Vertically upwards. Okay. अगर vertically upward जाता तो मेरे को पहले से कुछ चीजों का मालूम है. क्या मालूम है? Final velocity 0 रहने वाला है. Acceleration का value minus g आएगा. ठीक है? Okay. Let's come to this. A ball is thrown vertically upward. It goes to the height of 20 meter. क्या height पे गया? 20 meter. And then returns to the ground. Taking acceleration due to gravity, g का value 10 दिया है. Find the initial velocity. Second, when I am throwing the ball upward, initial velocity रहेगा, 0 नहीं रहेगा. The final velocity of the ball on reaching the ground, v when it is reaching ground पे का. Next, the total time of the journey. These are your questions. Total time. Okay, first question. And to find the first question, v मालूम है 0 है, a मालूम है minus g, h मालूम है. Now we will use the kinematical equations over here. ठीक है? तो Yes, तुमको u ढूंढना है. ठीक है? So which formula will I apply over here? h मालूम है ना, तो जिसमें h आता है वो वाला फॉर्मूला यूज करो जिसमें v और u दोनों आता है. That is the last kinematical equation. v square is u square plus 2as. v square यानी 0, u square 2 minus g h. 2gh इधर आएगा, यानी what is u square equal to 2gh. अगर तुमको ये फॉर्मूलाज याद रहता है, ये वाला, तो वेल एंड गुड, तो ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो. अगर याद नहीं रहता तो तुम काइनेमेटिकल इक्वेशन याद करो, उससे ये फॉर्मूलाज बनाते जाना. समझ में आ गया?
Yes, sir. u square 2, g का वैल्यू इज 10, हाइट इज 20 यानी 400, टेकिंग स्क्वायर रूट कितना आएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. अब उन्होंने पूछा है क्या हुआ, सॉरी मीटर्स पर सेकेंड ना, सेकेंड स्क्वायर. अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑन ग्राउंड. ना मैंने फेंका था 20 मीटर्स पर सेकेंड से, ऊपर गया वापस नीचे आया. जब नीचे आ रहा है ना तब का वेलोसिटी पूछा है. सो फॉलिंग फाइनल वेलोसिटी on ground is equal to the initial velocity when thrown up. तो ऊपर जाते वक्त मैंने जिस वेलोसिटी से फेंका था ना, नीचे आते वक्त वो ग्राउंड को टच करते वक्त सेम वेलोसिटी से ग्राउंड पे आएगा. यानी फाइनल वेलोसिटी ऑन द ग्राउंड will be equal to the initial velocity with which I have thrown it. यानी क्या आएगा 20 meters per second. Last question, total time. ओके अभी हमने टाइम तो ढूंढना ही नहीं है, ठीक है. सो पहले अपने को टाइम ढूंढना पड़ेगा. टोटल टाइम के लिए पहले टाइम ढूंढना पड़ेगा. सो लेट्स टेक द अपवर्ड मोशन. तुमको सब टर्म्स मालूम है, v इज इक्वल टू u प्लस at. v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 20 है, a का वैल्यू माइनस g यानी 10 है और t पूछा हुआ है. सो टेल मी 10t इधर आएगा, 10t is 20, 10t is 20. So what is t equal to 20 upon 10 यानी 2 seconds. ये कौन सा टाइम हो गया? This is the time with which the ball moves up. अगर 10 सेकेंड ऊपर जाने लगता है तो नीचे आने कितना लगेगा 10 सेकेंड. तो टोटल टाइम कितना लगा 10 प्लस 10 यानी कितना हो गया 20. तो टोटल टाइम इज 2t यानी 2 into 2 यानी 4 सेकेंड. सॉरी फॉर दिस 10 सेकेंड नहीं था, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड. क्लियर विद दिस? समझ में आ गया पार्ट? 13th क्वेश्चन. A ball is thrown vertically upward. वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं ना. वर्टिकली अपवर्ड के लिए क्या क्या याद रखना है? फाइनल वेलोसिटी इज 0, a का वैल्यू इज माइनस t. तो ये तुमको याद रखना है. इट रिटर्न 6 सेकेंड्स लेटर. मैंने ऊपर फेंका है, रिटर्न 6 सेकेंड्स लेटर यानी टोटल टाइम इज 6 सेकेंड. समझ में आया? तो मेरे को टोटल टाइम से कौन सा वाला टाइम मिलेगा? टाइम फॉर द ऑब्जेक्ट टू गो अप मिलेगा. कितना आएगा सुशांत? 4 seconds. 3 सेकेंड्स. ठीक है. वाई 3 सेकेंड? क्योंकि टोटल टाइम 6 सेकेंड है यानी ऊपर जाने का टाइम 3 सेकेंड हो गया. ग्रेटेस्ट हाइट पूछा है. फर्दर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल u पूछा है. So let's start. Let's apply the formula. मेरे को h चाहिए ना, तो s is equal to ut plus half at square. काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया. s यानी h, u. अच्छा इसमें u भी नहीं मालूम, so sorry I cannot use that. सबसे पहले अपने को टाइम ढूंढना पड़ेगा. तो टाइम टू गो अप इज हाफ ऑफ टोटल टाइम यानी हाफ ऑफ 6, 3 सेकेंड्स. सेकेंड स्टेप, क्योंकि टाइम मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, v मालूम है, u ढूंढना है ना. सो व्हाट इज v इज इक्वल टू u प्लस at. v यानी 0, u ढूंढना है, a यानी माइनस g. g का वैल्यू कितना दिया हुआ है? g का वैल्यू 10 है एंड टाइम 3 सेकेंड. तो u ऐसे ही रहेगा, माइनस 10, 30 इधर आएगा तो हो गया प्लस 30. सो व्हाट इज u इक्वल टू 30 मीटर्स पर सेकेंड. समझ में आ गया? Yes, sir. थर्ड स्टेप, u मिल गया, अब h चाहिए. व्हाट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. प्लस के बदले माइनस आएगा, हाफ, a के बदले g t स्क्वायर एंड दिस इज h. u का वैल्यू है 30, टाइम कितना आया था 3 सेकेंड, g का वैल्यू 10 एंड 3 स्क्वायर. 3 3 90,
5. 9 5s are 45. 90 minus 45 becomes, so what is the height? 45 meters. Clear with this? Yes, sir. हमने फॉर्मूला यूज किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 1 kg, 1 kg, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर. सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो फोर्स बिटवीन देम आ जाएगा. ठीक है, वैसे ही तुम्हारा पेज नंबर 75 पे चेक करो. फोर्स का कैलकुलेशन है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. उसमें मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 kg, but here the mass of the earth is 9 into 10 raised to, sorry, mass of the earth is 5.96 into 10 raised to 24 kg. Radius of earth is 6400 kilometers. Kilometer यानी 10 raised to 3 kilo, 10 raised to 3 meter. So mass of an object is 1 kg, mass of earth is known, radius of earth is known. पूछा है what is the force of gravity now. So once again, what is the force of gravity? G m1 m2 upon r square. m1 के बदले mass of earth small m, mass of an object upon r square. G का वैल्यू है 6.67 into 10 raised to minus 11. Mass of earth is 5.96 into 10 raised to minus 24. Mass of object is 1, 6400 into 10 raised to 3. So if I calculate all these values, I will get the answer approximately as 9.8 Newton. ठीक है, अभी वो कैलकुलेशन में डीप नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ शॉर्ट. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 पे आना. पेज नंबर 74, एग्जाम्पल 2. The gravitational force of attraction between the moon. मून का मास दिया है 7.36 into 10 raised to 22 kg and the earth का मास दिया है 5.96 into 10 raised to 24 kg and distance between the earth and the moon is known as 3.8 into 10 raised to 8 meters. Question is, what is the force of gravity between the moon and the earth? Once again, G m1 यानी mass of earth, m mass of moon upon r square. G का value is 6.67 into 10 raised to minus 11. Mass of earth is 5.96 into 10 raised to 24. Mass of an object is mass of moon is 7.36 into 10 raised to 22. Radius of earth is 3.8 into 10 raised to 8 का square. Okay. Now this is 6.67. This is 5.96. This is 7.36. This is 3.8 into 3.8. स्क्वायर है ना इसके लिए, into 10 raised to. अब हम लोग इंडाइसेस का रूल अप्लाई करेंगे. ये -11 है प्लस 24. इंडाइसेस का रूल, बेस इज सेम सो इंडेक्स इज एडेड. -11 plus 24 plus 22. 8 2 16, ऊपर जाएगा तो -16. तो मैंने इंडाइसेस के रूल से ना सारे 10 raised to हटा दिए, सारे के सारे 10 raised to मैंने अलग कर दिया. Once again, -11 plus 24 plus 22, 8 2 16, ऊपर जाएगा तो -16. नाउ ये वाला कैलकुलेशन तुमको बैठ के करना है. अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये ऐसे ही छोड़ो, क्योंकि ये कैलकुलेशन कब करना? आफ्टर यू कंप्लीट द होल पेपर. पूरा पेपर कंप्लीट करो फिर आके ये इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन करना. अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस. ठीक है, प्रोबेबली ये मेरे ख्याल से कैंसिल होने वाला रहेगा. एक बार मैं 38 into 38 करके चेक करता हूँ. 8 8 64, 8 3 24, 30, 8 3 24, 3 3 9, 10 11. कैंसिल कुछ नहीं होता है. 1444 डिवाइड होता है क्या? 3.8, 3.8 2 38 2 76.
डेसिमल्स कैंसिल करोगे, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, एटलीस्ट इसका करो। 24 + 22 46, 46 में से 16 माइनस किया तो 30, 30 में से 11 माइनस किया तो 30 में से 11 माइनस किया तो 90, तो 90. आंसर बिकम्स 10⁻19 न्यूटन। ये वाला सिर्फ कैलकुलेशन बाद में कर लेना है, ठीक है। आंसर 2 आ रहा है, तो प्रोबेबली कैंसिलेशन पॉसिबल है। Okay, let me just try the cancellations over here. Now, to do this calculation, what I will do is I will remove these decimals. Okay. So this Yes, is sir. 1 place before decimal. This is 1 place before decimal. This is 2 place before decimal. तो मैं ना ये 1 place decimal और ये 2 place decimal निकाल रहा हूँ। $38 × 38, ठीक है। अब पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड किया तो 19 आया, 2 से डिवाइड किया तो 3 6 6 366 आया, ठीक है। Yes, sir. वापस मैंने 2 से डिवाइड किया तो 19 आया, 2 से डिवाइड किया तो 183 आया, ठीक है। नाउ 19 190 नहीं, ये दोनों तो जाएगा नहीं, ये 19 प्राइम नंबर है। लेट्स ट्राई इट ओवर हियर। Is that 27 57 2 7 8 6 9 19 5 नहीं जाता। अप्रोक्सीमेट आंसर्स आ सकते हैं 19 3 और 5 35 आएगा। सब अप्रोक्सीमेट आंसर्स है, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा।